Very good morning and a very warm welcome back to all dear learners on the Law Prep Tutorials Daily News Analysis presented by me Jagdish Chandra Jangir. Today is the 26th of November and we are going to talk about the various important current affairs and the national and international news. Before we move ahead, we are supposed to give all the thanks and due credit to the journalistic media sources, both print and digital media. On behalf of the team Law Prep Tutorials and Winners IAS, I am extending all the thanks and credit towards them, sir and ma'am. Here's a disclaimer for the same. Intention of the class is really very bona fide. Intention is to impart learning among the masses through this YouTube class. The fair use of the same is permitted by the copyright statute as well. Sir and ma'am, you can always reach out to me for any academic doubts or the mentorship requirements of yours, and you can reach out to me through the WhatsApp or Telegram, and here's the number of the same, right? What are the topics that we are going to discuss? These are 6 topics that we are going to talk. The number 1 topic that we are going to talk over here is Mooly Bamboo, then Finfluencers. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का नाम सुना होगा, पर फिनफ्लुएंसर्स क्या होते हैं आपके पास में, यह एक कीवर्ड है. देन द वर्ल्ड टॉयलेट डेज एंड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल. द बिल इज इन द पार्लियामेंट राइट नाउ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन. मार्क इट 5 स्टार. लॉस एंड डैमेज फंडिंग फॉर द क्लाइमेट डैमेजेस एंड देन सूफिज्म. अच्छा, सूफिज्म के बारे में कईयों ने सुना होगा, है ना? सूफिज्म के बारे में जानते हो? इट इज ऑफशूट ऑफ इस्लाम ओनली, right? And very great tradition of the Sufism has followed and observed in India as well, and we are supposed to know the same in letter and spirit. So I hope that you all have noted down the due points, and we will be following up with the class as well. Moving forward, Mooly Bamboo, M-U-L-I bamboo. So what is Mooly Bamboo and why it's in the news recently? We are going to talk of the same, right? Recently, a research study observed and listed a large variety of the animal visitors, predators attracted by the fruits and the flowers of this Mooly bamboo, right? The study found that the predation is mainly due to the high content of sugars. तो यहाँ पे हाई सुगर कंटेंट के कारण बेसिकली आपके पास में जो है इसकी तरफ, इसके जो फ्रूट्स और फ्लावर्स की तरफ जो है बेसिकली प्रीडेटर्स जो हैं वह खींचे चले आते हैं. Then the highest ever fruit production in the bamboo clump is in the species was also reported below. Mooly is a tropical evergreen species of bamboo. So यहाँ पे what is mooly? Mooly bamboo यह एक tropical evergreen bamboo होता है, largest fruit producing bamboo है and it's native to the north east India. कहाँ पे? Specifically हमारे north eastern India के अंदर और म्यांमार वाले एरिया के अंदर. म्यांमार the then called Burma, है ना? Earlier it was named as the Burma. इसको पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? वी वर नोइंग इट बाय द नेम बर्मा. पता है ना, म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, राइट? सो द इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 90% ऑफ द बाम्बू फॉरेस्ट फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट. तो जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बाम्बू मिलता है वो सारा बाम्बू कौन सी वैरायटी का है? मूली बाम्बू. कौन सा है? मूली बाम्बू. एंड द प्लांट इज ऑल्सो ग्रोन एज द ऑर्नामेंटल प्लांट. अच्छा, ऑर्नामेंटल प्लांट क्या होता है आपके पास में? व्हाट इज ऑर्नामेंट? फॉर द डेकोरेशन पर्पस, है ना? सजावट के लिए जो चीज़ कोई यूज़ की जा रही है उसको ऑर्नामेंटल प्लांट कहा जाता है. मॉटम इज द स्ट्रेंज इकोलॉजिकल फिनोमिनन एसोसिएटेड विद द मूली बाम्बू दैट अकर्स एवरी 48 ईयर, है ना? तो आपके पास में एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फिनोमिनन है मॉटम, है ना, जो हर 48 ईयर्स में इन स्पीसीज के साथ में होता है. मॉटम का क्या मतलब होता है? बैम्बू डेथ. मॉटम का क्या मतलब है दोस्तों आपके पास में? द डेथ ऑफ बैम्बू, है ना? मीजो लैंग्वेज के अंदर इसको माउ मीन्स होता है बैम्बू एंड द टैम मीन्स डेथ. द डेथ ऑफ बैम्बू, मॉटम, राइट? इसमें हिंदी में भी शब्द आ रहा है मौत, डेथ, राइट? मॉटम मीन्स द डेथ ऑफ बाम्बू. हर 48 ईयर्स के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है आपके पास में? बाम्बू जो है इसका साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है. मॉटम द साइक्लिकल एंड द मास बाम्बू फ्लावरिंग एंड लार्ज फ्रूट प्रोडक्शन जो है यहाँ पे होता है. दिस अट्रैक्ट्स द एनिमल विजिटर्स, प्रेडेटर्स इंक्लूडिंग द पॉलन प्रेडेटर्स, हनी बीज, फ्रूट प्रेडेटर्स, राइट? अपार्ट फ्रॉम इट द मंकीज, रैट्स एंड द सीडलिंग प्रेडेटर्स एज वेल. इंसेक्ट प्रेडेटर्स आर ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स इट. सो ब्लैक रैट्स ग्रेटली जो है वो इसी के ऊपर रैलिश करते हैं, बैम्बू के ऊपर, राइट? एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्लैक रैट्स ऑल्सो मल्टीप्लाई रैपिडली. द फिनोमिनन इज नोन एज द रैट फ्लड. रैट फ्लड. तो आपके पास में रैट फ्लड कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्ट में होता है. क्यों होता है? क्योंकि बाम्बू जो है आपके पास में, मूली बाम्बू जो है वो उसको अट्रैक्ट करते हैं और उसके अट्रैक्शन के कारण, उसके
अट्रैक्शन के कारण आप यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन इनकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होती है, क्योंकि इनको चाहिए क्या है, खाने को पीने को। सो बाय क्विकली ईटिंग अप जो भी क्रॉपिंग साइकिल होता है इसका, उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दिस लीड्स टू द फेमाइन क्लेमिंग द थाउजेंड्स ऑफ द ह्यूमन लाइव्स। उसके कारण क्या हो रहा है, हजारों ह्यूमन लाइव्स बर्बाद भी हो रही है फेमाइंस के कारण। अच्छा, फेमाइंस क्या होता है दोस्तों, व्हाट इज फेमाइन? सूखा पड़ना, राइट, उसको कहते हैं फेमाइन। The due to the occurrence of the mortem, the molybdenum is locally known as the मोटक, इसको मोटक कहा जाता है। Sometimes you win and sometimes you learn, means there is no failure in life, it's all the perception। अगर आपको कभी भी ये लगता है लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर, कि कुछ चीज़ें आप सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे, अगर कुछ चीज़ें आप सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। अगर आप कभी फर्स्ट आने की सोच रहे, यू आर कमिंग सेकंड, दैट इज़ ऑल्सो ओके। अगर आप कोई थ्रेशोल्ड क्लियर करना चाह रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू रीच द थ्रेशोल्ड, यू आर जस्ट सम शॉर्ट गैप जो है, कहीं ना कहीं आपको अभी और ट्रैवल करना बाकी है। तो जब भी लाइफ के अंदर आपके पास में या तो जीत हाथ में लग रही है या एक लेसन हाथ में लग रहा है, देयर इज़ नो फेलियर, देयर इज़ ओनली एक्सपीरियंस दैट काउंट्स ऑन। और एक्सपीरियंस के ही बेस पे आप क्या करते हैं, आपके पास में लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फिनफ्लुएंसर्स। क्या है आपके पास में, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया के अंदर जो शेयर मार्केट है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी मार्केट। क्या कहते हैं, सिक्योरिटी मार्केट। इसी शेयर मार्केट को बेसिकली, सेकेंडरी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी। जैसे बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, सेंट्रल बैंक। वैसे ही जो भी आपके पास में स्टॉक एक्सचेंजेस होंगे, सेकेंडरी मार्केट होंगे, शेयर्स की खरीद फरोख्त वाला मामला होगा, इसको कौन कंट्रोल करेगा आपके पास में, रेगुलेट करेगा आपके पास में, सेबी। अभी सेबी ने कहा है कि इट इज वर्किंग ऑन अ गाइडलाइंस फॉर द फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, पॉपुलरली जिनको फिन इन्फ्लुएंसर्स भी कहा जाता है। देखिए, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को भी कंट्रोल करना जरूरी बात है या नहीं है, इज इट नेसेसरी? आई थिंक इट इज हाईएस्ट पॉसिबल नेसेसरी, है ना, सबसे ज़्यादा नेसेसरी यह एक चीज़ ही है आपके पास में, है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि देखिए, कल की तारीख में कोई कह रहा है कि सर इस कंपनी में पैसा डाल दीजिए, उसने हाथों हाथ दूसरे दिन वीडियो हटा दिया, आपने उसके कहने से पैसा तो डाल दिया, आपका पैसा डूब गया, किसको पकड़ोगे? सेबी कह रही है नहीं, कोई भी इन्फ्लुएंसर्स जो जा रहे हैं उनको सर्टेन गाइड्स, रूल, रेगुलेशन, नॉर्म्स फॉलो करने जरूरी है। सेबी मीन्स एक तरह का नियामक हो गया, ये एक नियामक है। जैसे बैंक्स का नियामक कौन है आपके पास में, रिजर्व बैंक, है ना, वैसे ही आपके पास में सिक्योरिटी एक्सचेंज जो है आपके पास में, बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, यह आपके स्टॉक एक्सचेंज का नियामक है। फिर influencers are the people in the public social media platform offering advice and the sharing personal experience about the money and investment। तो मनी और इन्वेस्टमेंट और स्टॉक एक्सचेंज में किस तरीके से मनी को इन्वेस्ट करना है, इसके ऊपर वो क्या दे रहे हैं आपके पास में, अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं, अपनी एडवाइस दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। उनके वीडियो कवर द बजटिंग, इन्वेस्टिंग, प्रॉपर्टी बाइंग, क्रिप्टो करेंसी एडवाइस, फाइनेंशियल ट्रेंड्स, ट्रैकिंग एटसेट्रा। वो बताते कि नहीं बताते आपको, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐसा हो जाएगा, इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए ऐसा हो जाएगा, ये कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी बुरा कर रही है, इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप बैठे बैठे घर पे कमा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, सीधा आपके पेटीएम में पेमेंट आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। दे आर मेकिंग फूल आउट ऑफ यू, राइट। सो यहाँ पे ये कहा कि द नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स गिविंग अनसॉलिसिटेड स्टॉक टिप्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली। इन एडिशन, सर्टेन कंपनीज यूज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म to boost their share prices through the influencers. There are no difference between the listed companies and non-listed companies when it comes to the frauds. More so now that digital data theft and technological risk are on the rise. बोले सबसे ज़्यादा घपले अभी हो रहे हैं when there are more and more frauds happening, more and more theft happening, more and more risk is there, right? We are supposed to control the social media platforms and the fin influencers associated with them। तो यहाँ पे आपके पास में सेबी कह रहा है कि हम फिन इन्फ्लुएंसर्स को भी बेसिकली क्या करेंगे, गाइडलाइन देंगे कि आप किन टॉपिक्स पे, किन मुद्दों पे कब क्या कह सकते हैं और कब क्या नहीं कह सकते। डूज डोंट्स आपके पास में एक तरह का फ्रेमवर्क उनके लिए सेट किया जा सकता है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी मे टॉक इज फॉर सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अच्छा, कई बार आप किसी बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, क्या कह रहे हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब आपके पास में हिंदी में इसको क्या लिखा जाएगा, वी कैन कॉल इट इन हिंदी एज अ वैधानिक। वैधानिक और विधान क्या होता है आपके पास में,
वैधानिक में अगर किसी चीज को कह रहा हूं, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, क्या सर ये किसी लॉ से बनी है, देयर इज अ लॉ, पार्लियामेंट में कोई लॉ पास हुआ है, किसी स्टेट असेंबली में कोई लॉ पास हुआ है, एंड आफ्टर दैट वी हैव मेड दैट बॉडी, दैट मीन्स दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अदरवाइज कोई बॉडी होती है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब संवैधानिक बॉडी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, संवैधानिक, मतलब वो संविधान के अंदर ही उसके बारे में बताया गया, जैसे कि आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, संविधान में ही वो चीज बोल दी गई, अलग से कोई पार्लियामेंट को कानून पास नहीं करना पड़ा उसे बनाने के लिए। तो विधान बना के, कानून बना करके जो बॉडी बना रहे हैं हम, जो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, तो वो सारे बॉडीज कैसे होगी, सारे ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो गए, स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना, जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट कोई आर्टिकल के अंदर ही दे रखा है कि देयर शैल बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब उसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो कैसी बॉडी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, याद रखेंगे, याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा कई तरह की नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज भी हो सकती है, जैसे कि ना ही संविधान में लिखा है, ना ही कानून में लिखा है, पर सरकार ने अपने हिसाब से बना ली उन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज को। कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो सरकार को काम करवाने के लिए बनाने पड़ते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाने पड़ते हैं, है ना, इनको बेसिकली हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। क्या होती है वो, एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब गवर्नमेंट ने अपने टारगेट को, अपनी नीड को, अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने वर्क को डन करने के लिए उन बॉडीज को बनाया है विद प्रॉपर मैंडेट एंड टारगेटिंग। So SEBI is a statutory body established in the 1992 in accordance with the provisions of the Security Exchange Board of India Act 1992। तो जो SEBI स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कोई कानून के अनुसार बनाई गई, तो कौन सा कानून इसमें यूज किया गया है, 1992 में बना हुआ SEBI एक्ट, कौन सा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। इस कानून के अकॉर्डिंग यह बनाया है, दैट इज वाई SEBI इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। बेसिक फंक्शन क्या रहेगा आपके पास में कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्ट करने वाला है, निवेशक का हित ध्यान में रखना है। जो पैसा निवेश कर रहा है ना सिक्योरिटी मार्केट में, शेयर मार्केट में, उसका इंटरेस्ट आपको क्या रखना है, ध्यान में रखते हुए चलना इन सिक्योरिटीज एंड प्रमोट द रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट्स। इट इज हेडक्वार्टर्स इन मुंबई, इंडिया। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, इंडिया। कैन वी ऑल रिमेंबर दैट? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसका काम क्या है? इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना। अच्छा, कब बनाया गया था? 1992 में। कैसी बॉडी है ये? स्टैट्यूटरी बॉडी। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स दैट यू आर सपोज टू नो अबाउट द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। तो यह देखिए, जब कोई कंपनी जैसे LIC अगर अपने शेयर पहली बार बेच रही है, जिसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्या कहा जाता है? कोई भी कंपनी अपना शेयर पहली बार बेचती है उसको क्या कहा जाता है? कंपनी ने IPO रिलीज किया। क्या रिलीज किया है? IPO रिलीज किया है। और IPO रिलीज करते हैं तो जो बेसिकली कंपनी अपना शेयर इन्वेस्टर को सीधा बेच रही है, दिस इज प्राइमरी मार्केट। दिस इज प्राइमरी मार्केट। अब जब आप एज अ शेयर होल्डर अपना शेयर किसी दूसरे को बेच रहे हो, आप एज अ शेयर होल्डर अपना कि सर मेरे को अब LIC का शेयर नहीं रखना है, आई वॉन्ट टू टेक माई मनी बैक, आप स्टॉक एक्सचेंज पे गए, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एग्जांपल के लिए, वहां गए और वहां पे आपने कहा कि आई वांट टू सेल दिस शेयर। आपका ही कोई भाई और है जो आई वांट टू बाय दिस शेयर। अब दोनों की डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गई, तो दोनों ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर के एक अपना सेलिंग का ऑप्शन एक्टिवेट करेगा, एक अपना बाइंग का, परचेज का ऑप्शन एक्टिवेट करेगा। और एक्सचेंज का क्या मतलब है? शेयर्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मींस द सिक्योरिटीज, द शेयर्स। तो पता चल रहा है वहां पे क्या एक तरह का प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। जैसे सब्जी मंडी में क्या दे रहा है? सब्जी खरीदने वाला और सब्जी बेचने वाले को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। वैसे स्टॉक एक्सचेंज में क्या किया जा रहा है? जो स्टॉक्स है, जो शेयर्स है, उसको खरीदने वाला और उसको बेचने वाले को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। इस सारी एक्टिविटी को हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट। ठीक है ना। तो सबसे पहली बार जो प्राइमरी मार्केट है, मतलब कंपनी खुद अपना शेयर मार्केट में रिलीज करती है IPO के थ्रू। किसके थ्रू? IPO के थ्रू। अब IPO से मैंने शेयर खरीद लिया, अब मैंने शेयर आपको बेचा, आपने वापस किसी और को बेचा, उसने वापस किसी और को बेचा, तो ये अगेन बाइंग एंड सेलिंग जो कंटिन्यूसली चलती रहती है ना बाद में, तो इसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। और ये सारा काम स्टॉक एक्सचेंज में होता है। किसमें होता है? और स्टॉक एक्सचेंज को कौन, सिक्योरिटी एक्सचेंज को कौन कंट्रोल करता है? SEBI। क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी। कब बना? 1992। हेडक्वार्टर का है? मुंबई के अंदर। काम क्या है? इन्वेस्टर्स के हकों की रक्षा करना। यू एंड आई आर द इन्वेस्टर हु आर इन्वेस्टिंग मनी इनटू द LICs, HDFCs एंड द वेरियस अदर कंपनीज। तो हमारे हक का, हमारे पैसे का क्या करें हम लोग? ढंग से उपयोग करें वो कंपनीज। दे आर
कोई भी मैल प्रैक्टिसेस, कोई मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस, कोई भी नॉन कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस होती हैं, उन प्रैक्टिसेस को रोकने का वो काम करती है। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं फिन इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वैसे ही हो सकते हैं फिन इन्फ्लुएंसर्स। कई लोग आते हैं नहीं आते आपके पास में, जो आपको अनसॉलिसिटेटेड सलाह दे के चले जाते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर दो, क्रिप्टो करेंसी ये अच्छा बूम आने वाली है, आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो सोच से भी कह रहा है कि भैया अब इनको भी क्या करना है, हमको रजिस्टर करना है और इनको भी रेगुलेट करना है, ठीक है। तो इन द फ्यूचर देयर विल बी गाइडलाइन ऑन द सेम, इनके ऊपर भी एक प्रॉपर गाइडलाइन आ जाएगी सर, राइट। तो सेबी यू कैन ऑल रिमेंबर, शॉर्ट नोट इसके ऊपर लिख सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सेबी, इट्स योर होमवर्क, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, सेबी में कितने मेंबर्स होते हैं? सेबी इज अ बोर्ड, राइट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, तो बोर्ड के अंदर तो कुछ मेंबर्स होंगे ना, बोर्ड इज नॉट अ सिंगल पर्सन, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ द पीपल इन इट। सो यहाँ पे एक चेयरमैन होता है, फिर 2 मेंबर्स होते हैं। Amongst the officials of the Ministry of the Central Government dealing with the finance, the one member of the among the officials are the from the Reserve Bank, and 5 other members of whom at least 3 shall be whole-time member be appointed by the central government। तो 5 अदर मेंबर्स भी होते हैं, एक बंदा आरबीआई से भी होता है आपके पास में, 2 मिनिस्ट्री से होते हैं, तो टोटल 5, 6, 7, 8 विद चेयरमैन, मीन्स चेयरमैन प्लस 8, चेयरमैन प्लस 8 मेंबर्स हो गए। याद रखेंगे इसको, कैन यू ऑल रिमेंबर, राइट, कैन यू ऑल रिमेंबर दैट, राइट डाउन योर होमवर्क। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताने वाले हु इज प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हु इज प्रेजेंट चेयरमैन, इसका अभी हाल में चेयरपर्सन कौन है, हु इज करंट चेयरपर्सन ऑफ द सेम। क्या हम इसको लिख सकते हैं, कैन यू ऑल राइट इट डाउन? यस वी कैन राइट इट डाउन सर, सो प्लीज डू दैट। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है आपके पास में, सेबी ऑल्सो अपॉइंट्स वेरियस कमिटीज, है ना, जो आपके पास में कई इश्यूज को ध्यान में रखती हैं। सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल सेट भी बैठता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एंटिटीज दैट फील एग्रीड बाय द सेबीज डिसीजन। जैसे कि सेबी का क्या काम है, हम कौन है भैया, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का ध्यान कौन रखेगा, सेबी। तो कल की तारीख में इन्वेस्टर्स के बेटरमेंट के लिए, उनके बेनिफिट के लिए सेबी ने कोई डिसीजन दे दिया दैट हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एनी कंपनी, दैट हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एनी कंपनी, तो वो कंपनी अगर एग्रीड है, अगर वो कंपनी कह रही है कि मेरे साथ में गलत हो रहा है, सेबी बहुत ही बड़ा नियामक है, बट मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दी 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, 2 करोड़ की, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस वक्त सैट में जा सकता हूँ। कहाँ जा सकता हूँ, सैट, एक तरह का ट्राइब्यूनल है। ट्राइब्यूनल का क्या मतलब होता है, द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। सैट ट्राइब्यूनल्स की कैटेगरी के अंदर आता है। ट्राइब्यूनल क्या होता है, जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, उनसे डिफरेंट डिस्टिंक्ट कोर्ट होते हैं। तो ट्राइब्यूनल किस लिए बनाए जाते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में सिर्फ इनकम टैक्स के मुद्दे डिस्कस होंगे, है ना। सेंट्रल सर्विस ट्राइब्यूनल्स के अंदर आपके पास में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अंदर क्या होता है, सिर्फ सेंट्रल सर्विसेज के मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं। वैसे ही ग्रीन ट्राइब्यूनल में सिर्फ एनवायरमेंट और एनवायरमेंट लॉ से रिलेटेड सारे के सारे मुद्दे सुने जाते हैं। वैसे ही आपके पास में सैट है। अच्छा, सैट क्या है आपके पास में, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल, मतलब यहाँ पे भी कुछ जज बैठेंगे, क्या बैठेंगे, कुछ टेक्निकल मेंबर, कुछ नॉन टेक्निकल मेंबर बैठेंगे इस ट्राइब्यूनल में। अब वो कहेंगे कि सर ये जो सेबी ने डिसीजन दिया इस कंपनी के खिलाफ, जो भी इसको पेनल्टी दी है या जो गाइडलाइन सेट की है इसके लिए, जो डूज एंड डोंट सेट किए, क्या यह सही है या नहीं है, क्या यह कानून सम्मत है या नहीं है, क्या यह लीगल है या नहीं है, क्या कंपनी यहाँ पे सही है, सेबी यहाँ पे सही है, या इन्वेस्टर यहाँ पे सही है। एंड अगेन सैट भी बेसिकली जो है वो इन्वेस्टर्स का ही इंटरेस्ट देखता है, कंपनी का इंटरेस्ट नहीं देखा जाता है। कंपनी यहाँ पे क्यों आई है, कोई भी कंपनी अपने आप को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे क्यों लिस्ट कर रही है, सिक्योरिटी एक्सचेंज पे क्यों लिस्ट कर रही है, बिकॉज दे वांट टू जनरेट डेट। क्या जनरेट करना चाह रही है वो, डेट, पैसा ही तो लेना आई है, शेयर बेच के पैसा लिया मेरे से, दैट्स ऑल। तो जब आप उधार लेने आए हो तो याद रहो हमको किसके हक की रक्षा करनी, उधार देने वाले की या उधार लेने वाले की, द पर्सन हु इज लेंडर, नॉट द बोरोवर। क्योंकि अगर ये कल की तारीख में दिवालिया घोषित हो गया तो इसका पैसा तो क्या हो गया, खत्म। दैट इज वाई दे आर वेरी मच श्योर कि जो भी प्रोसेस हो रही है दैट इज प्रॉपरली, कॉर्पोरेट रूल्स उसमें फॉलो हो रहे हैं, कंपनी रूल उसमें फॉलो हो रहे हैं, सिक्योरिटी रूल्स उसमें फॉलो हो रहे हैं, राइट। सो दैट्स द अल्टीमेट मोटो। सो इट हैज़ द सेम पावर वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट। तो जो आपके पास में सैट होगा ट्राइब्यूनल, इसके पास में सिविल कोर्ट की पावर होती है। फर्दर पर्सन विल एग्री टू द सैट्स डिसीजन, इट कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, कल की तारीख में कोई आदमी कहे कि सर ये जो हमारी जो सैट है, सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, इसने गलत डिसीजन दे दिया। इसने क्या दिया, सेबी ने इसको कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर 100 करोड़ की पेनल्टी, कितनी,
कोई कंपनी एबीसी पे 100 करोड़ की पेनल्टी, तुमने रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया। अब कल की तारीख में वापस सेबी क्या कर सकता है आपके पास में, ये कंपनी जा सकती है सेट के पास में, सेट क्या कर सकती है आपके पास में 100 करोड़ की पेनल्टी को रिमूव कर दिया, कैसे दिस पेनल्टी वाज रॉन्गली लेवाइड अपॉन दिस कंपनी, गलत तरीके से इसके ऊपर वो लगा दिया। अब वो इन्वेस्टर्स इससे एग्री हो गए, अब इन्वेस्टर इस सेट के डिसीजन के खिलाफ भी आगे जा सकते हैं, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कहाँ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो सबसे एपेक्स कोर्ट है, उससे ऊपर कोई है क्या, कोई नहीं है, वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब बोले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज साहब बैठे, उनको पता ही नहीं है सिक्योरिटी एक्सचेंज के बारे में, थोड़ा बहुत नॉलेज है पर टेक्निकल नॉलेज नहीं है ना। पर जो ट्राइब्यूनल होता है ना, उसमें जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और टेक्निकल मेंबर दोनों होते हैं। जैसे इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में कोई है तो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में एक जज बैठेंगे जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बराबर ओहदा रखते हैं, और बाकी नॉन टेक्निकल मेंबर, जो टेक्निकल मेंबर बैठेंगे जो धुरंधर सीए, धुरंधर आईटी लॉ के अंदर एक्सपर्ट, इनकम टैक्स क्या है क्या नहीं है, अंग्रेजों के जमाने से लेकर के आज तक क्या था वो सारा का सारा उनके ब्रेन के अंदर है। ईच एंड एवरीथिंग, कानून के टेक्निकल वे में, सीए में, सीएस में, सब चीज में वो पारंगत, ऐसे लोगों को वहाँ टेक्निकल में रखा जाता है। तो जज साहब लॉ में पारंगत है, वो टेक्निकल चीजों में पारंगत है। अब दोनों मिलकर ट्राइब्यूनल में डिसीजन देते हैं, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में। वैसे ही यहाँ पे भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड में भी क्या होगा, एक दो जज बैठे होंगे, बाकी टेक्निकल मेंबर होंगे जो सिक्योरिटी मार्केट का ध्यान रखते हैं, नॉलेज रखते हो, वो बताएंगे जज साहब बात ये है, बात ये है, फिर जज साहब उस पर डिसीजन देंगे। अब जज साहब के डिसीजन से, मतलब सेट के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, गो टू द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड तो आपको झक मार के होना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रिव्यू कर लीजिए प्लीज़। पर सुप्रीम कोर्ट 99% रिव्यू पिटीशंस एक्सेप्ट ही नहीं करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया मतलब वो फाइनल। ऐसे तो फिर हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट खुद का वापस सुनवाई करती रहे, एक जज ने सुनवाई की, फिर 2 जज की बेंच सुनवाई करे, फिर 3 जज की बेंच सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट का यही काम थोड़ी है। अभी पेंडेंसी ऑफ द केसेस कितनी ज़्यादा हो चुकी है, राइट, देयर इज लॉट एंड लॉट ऑफ पेंडेंसी ऑफ द केसेस। इन सारी चीज़ों को साथ में लेते हुए चलेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई, अच्छे से समझा हमने। फिर इन्फ्लुएंसर्स क्या होता है, कौन बात कर रहा है, सेबी बात कर रहा है, समझने में कुछ नया सीखने को मिला अगले 5-10 मिनट के अंदर, राइट। चलिए, एवरी अकम्पलिशमेंट स्टार्ट विद द डिसीजंस टू ट्राई। आपने ट्राई किया इस क्लास को देखने का, इस क्लास में अटेम्प्ट होने का और इस क्लास में अटेंशन देने का, एंड दैट इज व्हाई यू हैव अकम्प्लिश्ड लास्ट 5 to 10 मिनट्स एज अ माइलस्टोन इन द नॉलेज। अब आपने मैक्रो इकोनॉमी नहीं पढ़ी, आपने द हिंदू नहीं पढ़ा, आपने इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ी, आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, पर फिर भी इस क्लास के कारण यू आर हैविंग द होलिस्टिक नॉलेज। कल तुम बाहर मार्केट में खड़े होकर बता सकते हो सेट क्या है, सेबी क्या है, फिर इन्फ्लुएंसर्स क्या होता है, और अब इनको भी हम गिरफ्त में लाने वाले हैं। वी विल हैव रेगुलेशंस ओवर देम एज वेल, एंड दैट्स ऑल यूपीएससी ऑल अबाउट। देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्लैट, जुडिशरी, यूपीएससी इज व्हाट, सारी की सारी चीजें क्या है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, सहज शब्दों में, साधारण शब्दों में बता दो मुझे भैया। यह कलेक्टर बनाएगा, यही चीज तुम्हें जज बनाएगी, समझ रहे हो, बिकॉज दैट इज अवेयरनेस। चलिए, तो लाइफ में हमेशा ट्राई करते रहना है, हरकत में बरकत है। किस में बरकत है, हरकत में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड टॉयलेट डे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फैक्चुअल डिटेल है, वी विल पास इट ऑन। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। अवेयरनेस जो है, इंपॉर्टेंस है सस्टेनेबल सैनिटेशन के लिए। यहाँ पे जो एक थीम भी है, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, द वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेटेड बैकग्राउंड। द वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली सिंस 2013। एक्शन हैज बीन टेकन ऑन द ग्लोबल सैनिटेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी हैं नंबर 6। SDG 6 क्या है, क्या आपको पता है? देर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स which has to be completed right from 2050 to 2030। हर कंट्री, हर गवर्नमेंट, हर कंपनी कोई न कोई काम करने का कोशिश कर रही है। ऑल आर ट्राइंग टू अचीव कलेक्टिवली, ग्लोबली, सारे के सारे कंट्रीज की गवर्नमेंट मिलकर के SDGs अचीव करना चाह रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब डेवलपमेंट तो करना है बट इन अ सस्टेनेबल वे। सस्टेनेबल मीन्स आज की जरूरतों को पूरा करते हुए फ्यूचर डिमांड्स भी हमारी मीट होती रहे, ये भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि सारा कोल तुम ही फूंक दो, ऐसा नहीं कि सारा पेट्रोल तुम ही फूंक दो, ऐसा नहीं कि सारे फॉरेस्ट तुम ही कट डाउन कर डालो, ऐसा नहीं कि सारा पानी जो है तुम वेस्ट कर डालो, सारा पानी पॉल्यूट कर डालो, एनवायरमेंट को खत्म और खराब कर डालो। यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर यू वांट टू गिव टू योर नेक्स्ट जनरेशन। Shall your next generation be thankful and grateful towards you, or the next generation should curse you कि पापा और दादा ने मिलके पूरा प्लेनेट खराब कर डाला? No, that should not happen, and that is why the word sustainable is used over here, है ना। तो ये यूनाइटेड नेशन का एक मोटो रहा है, 2001 से लेकर के 2015 तक हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स फॉलो किए। क्या है?
MDGs, और 2015 से लेकर के 2030 तक हम लोग SDGs फॉलो करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कितने गोल हैं? देयर आर टोटल 17 गोल्स, है ना, जैसे पॉवर्टी, जैसे हंगर, जैसे लिटरेसी, जैसे बेटर लाइफ, जैसे बेटर अर्बन सिटीज, जैसे बायोडाइवर्सिटी, जैसे क्लाइमेट चेंज, है ना, जैसे कोलैबोरेशन वगैरह करना। वैसे ही जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आपके पास में ये गोल आता है कि वी नीड टू हैव द सैनिटेशन एंड वाटरफॉल और बाय 2030। तो सैनिटेशन, स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार चला रही है। क्यों चला रही है? बिकॉज ग्लोबली, खाली हम ही नहीं चला रहे, कई और कंट्री भी सैनिटेशन पे काम कर रही है। पूरे ग्लोब को काम करना है सैनिटेशन और वाटर सब तक हो, स्वच्छता और पानी सब तक पहुंचे। कब तक? 2015 तक। 15 सालों का गोल है हमारे पास में, 2015 से 30 तक, ठीक है ना। ये याद रख सकते हैं। राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन द SDGs प्लीज, होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। शॉर्ट नोट लिखना है आपको। शॉर्ट नोट मतलब 5 से 10 लाइन, मैक्सिमम 5 लाइन, मिनिमम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, स्पेलिंग लिखूं? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इज द 6th नंबर। आप गूगल करेंगे तो आपको पूरा चार्ट मिल जाएगा उसका, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, और सारी चीज़ें तुमको पता है, ऑलरेडी पता है, कोई भी उसमें कुछ नया नहीं है। The theme of the year explores how the adequate sanitation system spread the human waste into the rivers and the lakes and polluting the underground water resources as well. ठीक है ना। इंडिया की अप्रोच क्या रही आपके लिए? इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति जो है स्वच्छ भारत मिशन जो है ग्रामीण भी लेके आई आपके पास में, इसलिए यहाँ पे स्वच्छता रन अक्रॉस रूरल इंडिया चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है रीऑर्गेनाइज किया जाता है, इस रीऑर्गेनाइज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बिहेवियरल चेंज प्रोग्राम। ओपन डेफिकेशन बंद करवाया जा रहा है, खुले में शौच बंद करवाई जा रही है गाँवों के अंदर, है ना। तो आपके पास में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर मतलब बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है वो चेंज किए जा रहे हैं। It has already achieved the SDG target 6.2 pertaining the access to the safe sanitation when the entire country achieved the open defecation free status in 2019 and is persistent in the efforts till now to achieve the ODF plus status. ODF प्लस स्टेटस की यहाँ पे बात की जा रही है। ODF प्लस स्टेटस का मतलब होता है आपके पास में यू आर नॉट ओनली हैविंग दिस बट ऑल्सो ऑपरेशनल, आपके पास में क्लीन टॉयलेट्स भी घर में अवेलेबल है, अवेयरनेस भी है, क्लीन वाटर आपके पास में, टैप वाटर आपके पास में है, ठीक है ना। खाली पिट होल वाले टॉयलेट्स नहीं है, वाटर टॉयलेट्स है, मीन्स यू आर हैविंग द हाइजीन मेंटेन्ड एज वेल। तो हमने ऑलरेडी ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस तो पूरे इंडिया के लिए 2019 में अचीव कर ही लिया है। अब हमारा टारगेट है ODF प्लस और ODF प्लस प्लस की तरफ, है ना, बेटर सैनिटेशन की तरफ। व्हाट इज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण? तो यहाँ पे स्वच्छ भारत के अंदर बेसिकली हमने इसको लॉन्च कब किया? 14 में मोदी जी ने आते ही बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति। एसिलरेट करता है यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज, फोकस करता है स्पेसिफिकली सैनिटेशन स्वच्छता के ऊपर। इंप्लीमेंटेड एस नेशन वाइड कैंपेन, जन आंदोलन की तरह इसको, ताकि हम एलिमिनेट कर सके ओपन डेफिकेशन रूरल इंडिया के अंदर। स्पेसिफिकली रूरल इंडिया में सबसे ज्यादा है ओपन डेफिकेशन, और का है ग्रामीण भारत में तो है खुले में शौच करते, शहरों में आपने इतना नहीं ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे इसके फेज 1 के अंदर अगर बात करें रूरल सैनिटेशन की कवरेज एट अ टाइम ऑफ द लॉन्च ऑफ SBM ग्रामीण द 2nd October was reported as the 38%. More than 10 crore individual toilets have been constructed and since launch of missions as a result rural area in all the state have declared themselves as the ODF, है ना। 2019 के अंदर ही रूरल एरियाज क्या हैं? ODF क्लियर हो चुके हैं। सो क्वेश्चन आ जाए, इज व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड एज द ODF फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री के खुले में शौच करना लोगों ने बंद कर दिया, ये 2019, ठीक है ना। स्वच्छ भारत मिशन का फेज 2 जो है वो एम्फेसिस करता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अचीवमेंट्स अंडर द फेज 1 एंड प्रोवाइड द एडिक्वेट फैसिलिटीज ऑफ द सॉलिड लिक्विड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ODF प्लस, है ना, सॉलिड लिक्विड एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है रूरल एरियाज के अंदर। इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा 2021 से लेकर के 24-25 तक, है ना, इन मिशन मोड। इसके लिए 1,40,000 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए जा रहे हैं। यहाँ पे इसमें कंपोनेंट रहेगा ये ODF प्लस के लिए विल बी मॉनिटर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द आउटपुट इंडिकेटर। 4 की एरियाज यहाँ पे देखे जाएंगे। प्लास्टिक वेस्ट कैसे मैनेज किया जा रहा है गाँव के अंदर, ठीक है ना, बायोडिग्रेडेबल और सॉलिड वेस्ट को अलग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, जो ग्रे वाटर आ रहा है आपके किचन से, आपके वॉशरूम से, उसको किस तरीके से जो है आप मैनेज कर रहे हैं, जो फीकल स्लज आ रहा है टॉयलेट से उसको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। बिकॉज पहले ये समस्या नहीं थी, लोग खेतों में जाते थे, वही चीज़ मन्योर बन जाती थी, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अब वो बेसिकली लोग घर में बाथरूम यूज कर रहे हैं, ग्रे वाटर डेवलप हो रहा है, उस ग्रे वाटर की समस्या का भी तो कोई आपके पास में निजात होना चाहिए। पहले ग्रे वाटर डेवलप ही नहीं हो रहा था आपके पास में, अब ग्रे वाटर है, गंदा पानी होगा, अब उसको कैसे मैनेज करोगे?
क्वेश्चन से, राइट। ये है ODF प्लस, मतलब उससे भी आगे। ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब आपने कहीं ना कहीं टॉयलेट्स, यहाँ पे पक्का टॉयलेट्स लोगों को बना के दे दिया, पर उस टॉयलेट से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, उसके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं दे रहे हो, वो है ODF प्लस। क्या है? ODF प्लस। सो परफॉर्मिंग स्टेट कौन से? टॉप 5 परफॉर्मिंग स्टेट्स में तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, यूपी और हिमाचल प्रदेश आए हैं, जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ द विलेजेस में जो है उनको ODF प्लस स्टेटस दे दिया गया है। तो अब क्लियर हुआ ODF क्या है और ODF प्लस स्टेटस क्या है। ODF और ODF प्लस स्टेटस क्या होता है, ये चीज क्लियर हो गई हमको। तो टू बी ए चैंपियन यू मस्ट बिलीव इन योरसेल्फ व्हेन नो वन एल्स डज। लाइफ में मन के माने हार और मन के जीते जीत होती है। मन, मस्तिष्क और आत्मा तीनों के अंदर एक मानसिक एकता होनी बहुत ही जरूरी है। आपके गोल के साथ जब तक आपकी मेंटल यूनिटी नहीं है तब तक आप खाली ख्याली फुलाव में रहोगे, है ना। हमेशा मैं एक वाक्य कहता हूँ आपके पास में कि प्यार किससे होना चाहिए, मंजिल से या रास्ते से। जितना प्यार मंजिल से है उससे 2 गुना प्यार रास्ते से होना चाहिए, ठीक है ना। प्यार मंजिल से भी होना है, सर कलेक्टर बनना है, जज बनना है, समाज की सेवा करनी है, डेफिनेटली वह मुकाम भी आएगा, वह मुकाम भी आएगा और इन कंधों पे सितारे भी चमकेंगे। परंतु उससे पहले, बिफोर यू अचीव देयर, बिफोर यू रीच देयर, उससे पहले आपको क्या अचीव करना है, आपके पास में बिलीफ, आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, I know it is going to be hard, no matter how hard it is, I am going to make it. If this is the attitude, no competition is impossible for you. हर competition quite possible होता है हर स्टूडेंट के लिए। नेशनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात की जाती है दोस्तों आपके पास में। यूनियन गवर्नमेंट ने रिलीज किया है रिवाइज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, है ना, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द 3 months of the withdrawal in the personal data protection bill। तो पहले एक बिल आया था 2019 का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए, पर उसमें काफी सारे लूप होल्स थे, काफी निगेटिव्स थे उसके अंदर, काफी लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया। प्लस फॉरेन कंट्रीज बोल रही कि भैया इसमें काफी सारे प्रोविजन है, इसको हटाओ, हम कंपनियां इनसे सेटिस्फाइड नहीं है। तो जो लॉबिंग जो की गई ना, भारत सरकार ने इस बिल को वापस हटाया और अब नया बिल लेके आया। अच्छा, बिल का मतलब समझते हो आपके पास में, बिल क्या है आपके पास में, जब लोकसभा में या राज्यसभा में पारित किया जाता है, लोकसभा में राज्यसभा में फिर वोटिंग होती है, अगर वो पास हो जाए, फिर अगर प्रेसिडेंट भी उसके ऊपर साइन कर दे, है ना, जब ये तीनों स्टेप हो जाए, पास दिन लोकसभा, पास दिन राज्यसभा, साइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट ने अनुमति दे दी, देन इट बिकम्स एक्ट, देन इट बिकम्स एक्ट। और ये एक्ट है, ये होता है लॉ। बिल कोई लॉ नहीं होता है। बिल तो क्या है आपके पास में, बिल के अंदर अभी काफी अमेंडमेंट लोकसभा कर सकती है, राज्यसभा भी कर सकती है, काफी प्रोविजंस डिलीट भी किए जा सकते हैं, और लास्ट में अगर प्रेसिडेंट को है कि मेरे को साइन नहीं करना तो पॉकेट वीटो, वो उस कागज को लपेट के मोड़ के अपने जेब में डाल दिया, पॉकेट वीटो, साइन ही नहीं किया, या फिर वापस भेज दिया। प्रेसिडेंट को कोई चीज अच्छी नहीं लगी, है ना, फॉर द रिव्यू ऑफ पार्लियामेंट वापस भेज सकता है लोकसभा राज्यसभा के लिए, प्लीज कंसिडर इट अगेन। जो पॉइंट्स लिखे 5 पॉइंट उसको वापस देख लीजिए, हो सकता है वो कुछ उसमें चेंजेस रिकमेंड करे, हो सकता है ना करे, हो सकता है ऑल टुगेदर उस वापस को फोल्ड करके वापस जेब में रख दे, पॉकेट वीटो। वीटो डायरेक्ट तो नहीं कर सकता, पर पॉकेट वीटो साइन करना है, बिल्कुल करना है सर। पर साइन करने का कोई टाइमलाइन दिया हुआ है क्या तुमको? नहीं दिया हुआ। तो इन चीजों को आप लोग याद रख सकते हैं। डेटा प्रोटेक्शन बिल पे आते हैं जो अभी वापस इंट्रोड्यूस किया गया है। डेटा प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डेटा इज करेंसी इन दिस डिजिटल एरा। 7 प्रिंसिपल्स हैं इस बिल के अंदर। फर्स्टली, द यूज ऑफ पर्सनल डेटा बाय द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डन इन द मैनर दैट इज लॉफुल। कि सर कोई भी डेटा का यूज जो है, क्या है आपके पास में, डेटा का यूज क्या होना चाहिए, लॉफुल हो, फेयर होना चाहिए, ठीक है ना, टू द इंडिविजुअल्स कंसर्न एंड ट्रांसपेरेंट, और उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता होनी चाहिए, कानूनी तरीके से हो, सही तरीके से हो और पारदर्शी तरीके से किसी भी डेटा का यूज होना चाहिए। पहला तो ये चीज कह रहा है। सेकेंडली यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि पर्सनल डेटा मस्ट ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज कलेक्टेड। आपका पर्सनल डेटा मैंने लिया सेंसस के लिए, आपका पर्सनल डेटा लिया मैंने आधार अपडेशन के लिए, आपका पर्सनल डेटा लिया मैंने वोटर कार्ड बनाने के लिए, पर पता नहीं उसका कोई दूसरा तीसरा भी यूज हो रहा है। कैन दिस बी यूटिलाइज फॉर द एनी अदर थिंग एज वेल? वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डेटा, पर्सनल डेटा मस्ट ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज कलेक्टेड। द थर्ड प्रिंसिपल टॉक्स ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन। डेटा मिनिमाइजेशन, अब सिर्फ आपका सपोज सारी इंफॉर्मेशन देने की जरूरी नहीं है, मैं तो कह रहा हूं आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या दीजिए अपना VID, क्या दीजिए, वर्चुअल ID। पता है आधार VID भी बनता है,
आपको पूरा इन्फॉर्मेशन, मेरा नाम, पिता का नाम, जगह कहाँ है, डेट ऑफ बर्थ कहाँ है देने की, मेरा आधार नंबर क्या है देने की जरूरत ही नहीं है। मैं उसको क्या दूंगा, वीआईडी। अब वीआईडी से अगर वो उसके पास में गवर्नमेंट का अप्रूवल है तो वो वीआईडी से मेरी आइडेंटिटी अपने आप स्टेब्लिश कर लेगा। अगर वो फेक है, फर्जी, उसका मिसयूज कर सकता है तो उसको वीआईडी क्या है वो पता ही नहीं चलेगा मेरी। ठीक है ना? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दिस इज काइंड ऑफ अ कोड, उसको डिसाइफर करना होगा। सो इससे क्या होगा, अगर वो ऑथराइज्ड यूजर है, एंटिटी है, तभी वो पर्सनल डेटा को यूज कर पाएगा उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए दिया जा रहा है, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। द थर्ड प्रिंसिपल टॉक ऑफ द डेटा मिनिमाइजेशन। द फोर्थ प्रिंसिपल पुट्स द एम्फेसिस ऑन द डेटा एक्यूरेसी व्हेन इट कम्स टू द कलेक्शन। सर डेटा एक्यूरेट भी तो होना चाहिए, डेटा एक्यूरेट भी तो होना चाहिए। तो डेटा मिनिमाइजेशन की बात करेगा, डेटा एक्यूरेसी की बात करेगा आपके पास में, और किसकी बात करेगा आपके पास में, पर्सनल डेटा जो है उसी पर्पस के लिए यूज हो, है ना, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो, ट्रांसपेरेंट और लॉफुल मैनर में यूज हो। ये सारा बिल जो है वो सारे के सारे पॉइंट्स बता रहा है। फिफ्थ पॉइंट टॉक्स ऑफ हाउ पर्सनल डेटा इज कलेक्टेड कैन नॉट बी स्टोर्ड परपेचुअली बाय डिफॉल्ट एंड स्टोरेज शुड बी लिमिटेड फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन। ऐसा नहीं कि आपने मेरा डेटा लिया था इन द 19, सपोज मेरा जन्म है 1989, इस डेट को अगर मेरा डेटा लिया गया है तो क्या ये सिर्फ 2 साल के लिए लिया गया, 1 साल के लिए लिया गया, 3 मंथ्स के लिए लिया गया, या 10 ईयर के लिए लिया गया? एक ड्यूरेशन तो हो उसका, देयर मस्ट बी अ ड्यूरेशन फॉर दैट। आपने डेटा ले लिया और उस डेटा को लेकर के बैठ गए उस डेटा के ऊपर 50 साल, 100 साल, 60 साल, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट डेटा? और ऑफिसेस के अंदर देखिए, पूरा भारत कितना बड़ा देश है, अननेसेसरी डेटा आप बढ़ा रहे हैं, इसको मेंटेन करने की भी गवर्नमेंट की कॉस्ट आएगी ना। सपोज आपने डेटा लिया 1 करोड़ लोगों का, पर सिर्फ 2 महीने के अंदर आपने अपना काम फिनिश करके उस डेटा को वापस क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है ना। अब आपको आगे भविष्य में उसको मेंटेन करने की कोई नौबत नहीं आएगी, आपका काम खत्म, स्पेसिफिक पर्पस हुआ। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखते हुए आप बाकायदा यूजर्स को बताएं कि जो हमने डेटा लिया था हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। बट क्या ये ऐसा हो रहा है? A very severe question. Sixth principle says that there should be reasonable safeguards to ensure that there is no unauthorized collections or processing of the personal data. कोई भी आदमी कहीं कहीं पे होता है आपके पास में कि सर आपका आधार कार्ड जमा करवाइए तो ही हम ये करेंगे, बैंक्स मांग लेती है आधार कार्ड। कहीं कहीं पे बेसिकली नॉर्मल सी जगह होती है आपके पास में, वहाँ पे भी आपके पास में से आपका आईडी कार्ड मांग लिया जाता है कि सर आप जब तक आईडी कार्ड नहीं देंगे तो वो काम हो ही नहीं सकता। जबकि काम क्या, 5-10 मिनट का काम है वहाँ पे, पर सर आईडी कार्ड तो देना होगा। तो आपका पूरा अनऑथराइज्ड एंटिटी है वो, आप कैसे उससे डेटा ले सकते हैं, कैसे उसे डेटा दे सकते हैं? तो इनको भी रोकना जरूरी है सर, है ना। 6th प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि सेफ गार्ड हो, कि हर एक कोई भी आदमी जो अनऑथराइज्ड है वो डेटा को कलेक्ट या प्रोसेस ना करे। अब इससे पहले देखो, जब 5G सिम्स 4G सिम्स आई थी आपके पास 2016, 17, 18 की बात करूँ, तो हर कोई आदमी जाकर के अपना थंब इंप्रेशन दे रहा था एयरटेल की शॉप पे, जियो की शॉप पे, और 4G सिम खरीद रहा था। बोले आधार कार्ड की भी जरूरत नहीं है, खाली आधार कार्ड दिखाओ, थंब इंप्रेशन दो, लेके जाओ। मतलब UIDAI ने क्या कर दिया था, एयरटेल को और जियो को सीधा डेटा ही दे दिया, इन अ वे डेटा ही दे दिया कि वो खुद वेरीफाई कर रहा है। केस गया कोर्ट के अंदर कि भाई कस्टोडियन कौन है मेरे आधार के डेटा का, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI वो है। तो सर ये जियो कैसे वेरीफाई कर रहा है सर? Is he authorized processing person? Is he authorized to collect my data? बात तो है। फिर उनसे डेटा लिया गया अलग, अब उनको बकायदा आधार कार्ड भेजना पड़ता है, थंब इंप्रेशन लेकर के भेजना पड़ता है, फिर वो आगे वेरीफाई होकर के आता है, फिर वेरीफाई होकर के आता है, फिर अपने पास OTP आता है, अपन उसको ओके करते हैं तो वो वेरीफाई होता है, मतलब वो वापस वो क्या है, प्रोसेस सही किया गया। तो सर फ्यूचर में भी इसका ध्यान रखना है अपन को। 7th प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट the person who decides the purpose and the means of the processing of the personal data should be accountable for such processing. वापस सुनो, the person who decides the purpose and the means of processing of the personal data, जैसे आज की तारीख में कोई भी आदमी, कोई भी संस्था का मालिक हो गया, कोई भी गवर्नमेंट संस्था का मालिक हो गया, कोई भी गवर्नमेंट संस्था का ऑफिसर हो गया, वो आपका डेटा दे रहा है, राशन की दुकान वाला ले रहा है, तो किस तरीके से उस डेटा को प्रोसेस करेगा, किस तरीके से स्टोर करेगा, वो सारी चीज़ें, हर चीज़ के लिए वो जिम्मेदार होगा, आंसरेबल होगा, जवाबदेह होगा, राइट। आपने डेटा लिया ना सर, बताइए मेरे डेटा का क्या हुआ, मेरा डेटा कहाँ से लीक हो गया? आपको पता होना चाहिए फेसबुक का डेटा लीक हुआ था अभी काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी इंडियंस का डेटा लीक हुआ था लंदन के अंदर, मतलब बेचा गया वो डेटा लिटरली। आदमी कौन, मेल आईडी कौन, उसके फैमिली में कौन, उसका सारा इन्फॉर्मेशन, उसके फोटोग्राफ्स, उसकी वीडियोस, बकायदा कंपनीज ने खरीदा इसको डेटा को,
फेसबुक से पूछा क्या कैसे बेच दिया, सॉरी सर, जो लूप होल था हम उसको सही करते हैं, बिकॉज द पर्सन जिसकी अकाउंटेबिलिटी थी उसने सही तरीके से डेटा को प्रोसेस नहीं किया, स्टोर नहीं किया, हैंस वो डेटा लीक हो गया। लीक होने के बाद तो आप क्या कर सकते हो, उसकी 1000 कॉपी बना लो, राइट, एंड दैट इज वाई यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ इट। तो इसीलिए डेटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है। द की फीचर्स ऑफ दिस बिल है ना, वो सारे मैंने इसमें डेटा प्रिंसिपल्स लिखे, इंडिविजुअल पर्सनल डेटा को किस तरीके से मिनिमाइज करना है, किस तरीके से रेस्पेक्ट करना है पर्सनल डेटा को, सारी चीज़ें इसमें लिखी है ना। एज ऑफ कंसेंट भी होना चाहिए, पर्सनल डेटा जो है आपके पास में उसको फिड्यूशरी वांट्स के लिए नहीं कलेक्ट करना चाहिए आपके पास में। कलेक्शन जो है फर्दर प्रोसेसिंग से पहले हमेशा याद रखना है, कंसेंट लेना जरूरी है। सर मैं आपका डेटा इतने टाइम के लिए रिकॉर्ड करके रखूंगा, इतने टाइम के लिए स्टोर करके रखूंगा, यहाँ प्रोसेस होगा, इस सर्वर में ये रहने वाला है। ये सारी चीज़ें तो हमें बताई नहीं जाती, हमारे से तो सारी इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है। इनफैक्ट हम फोन खरीदते उससे पहले जब तक उसमें सारी परमिशंस को यस 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 ना कर दे, है ना, तब तक फोन ही चालू नहीं होता भैया हमारा। और आज की तारीख में सारी चीजें इतनी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कर दी गई है ना। और राइट टू नॉमिनेशन भी होना चाहिए, राइट टू इरेज भी होना चाहिए। मेरा नाम गलती से अखबार में आ गया, मेरा नाम अगर गलती से अखबार में आ गया, आई शुड हैव राइट टू इरेज। भैया क्यों आया है, कोई भी आदमी मेरा अखबार में नाम देख करके मेरे को और बदनाम करने की कोशिश करेगा। राइट टू इरेज, सर प्लीज मेरा ऑनलाइन डेटा इरेज कीजिए, अखबार का डेटा इरेज कीजिए। देखिए वो गलत इन्फॉर्मेशन थी, गलत न्यूज़ थी। ये यूरोप में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, हमारे यहाँ पे हो ही नहीं रहा ये सारी चीज़ें। एक आदमी पे केस चला, ट्रायल चला यूरोप में, तो वहाँ का जो यूरोपियन कोर्ट है उसने उसको फ्री कर दिया कि सर ये आदमी तो सही निकला, इसने कोई क्राइम किया ही नहीं है। परंतु उसी बीच में जो 10-15 दिनों के अंदर अखबारों में जो न्यूज़ छपी उसकी बदनामी, तो बोले सर अभी तो ये मेरे को बदनामी कर ही रहे, भविष्य में भी मैं जो भी काम करूंगा उसमें मेरे को बदनामी होगी, देखो इस पे केस चला, इस पे केस चला, ये देखो अखबार में छपा हुआ, समथिंग लाइक दैट। तो यूरोपियन कोर्ट ने गूगल को और सारी इंटरनेट वेबसाइट्स को बोला कि जहां भी इस आदमी का डेटा है, फोटो है, न्यूज़ रिपोर्ट है, सब डिलीट की जाए। राइट टू इरेज, राइट टू बी फॉरगॉटन, इसको क्या कहते हैं, राइट टू बी फॉरगॉटन। यूरोप में है, इंडिया में नहीं है। अब ये जो डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि राइट टू नॉमिनेशन होना चाहिए। अगर फेसबुक आईडी किसी आदमी की है, मर गया बेचारा आदमी, उसके बाद में क्या होगा, तो राइट टू नॉमिनेशन होना चाहिए ना। जैसे आप हर एक चीज में नॉमिनी डालते कि नहीं डालते, आप अपने दोस्त को, अपनी बीवी को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने किसी कलीग को या अपने किसी फैमिली मेंबर को एज ए नॉमिनी बना सकते हैं जिस पर आपको बिलीव है, ताकि वो उसको वेरीफाई करके आपके डेटा को मिसयूज होने से रोक सके, आईडी को हैक होने से रोक सके। हाँ या ना, इट मे हैपन। राइट टू नॉमिनेट, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड होना चाहिए। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर कैसे होगा इसका ध्यान रखने की कोशिश करना है। डेटा प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, एग्जेम्पशन को मेंटेन करते हुए चलना, नेशनल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना जरूरी है। बाकी सारे कमिटीज़ के बारे में इसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है जो आपको रीड करनी है। टाइम एंड अगेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। कभी भी आप लाइफ में सोचेंगे 10वीं कर ले फिर मजे, 12वीं कर ले फिर मजा आ जाएगा, ग्रेजुएशन के बाद आने वाला है मजा, तो जब JNU में चले जाएंगे, MBBS कर लेंगे, BDS कर लेंगे, लॉ कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, मिरांडा हाउस से बेसिकली ग्रेजुएशन मास्टर्स कर लेंगे, तब मजा आएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो मजा तो जुडिशरी की तैयारी या IAS की तैयारी के अंदर आता है। एक बार वो क्रैक हो जाए, अच्छा जज बन गए, कलेक्टर बन गए, उसके बाद में ऐसा नहीं है। अभी जूनियर पोस्टिंग है, सीनियर पोस्टिंग मिलेगी, मजा तब आएगा। अभी पोस्टिंग जोधपुर जयपुर में मिलेगी तब मजा आएगा। अभी तो एक मिनिस्ट्री ढंग की मिल जाए, उसका सेक्रेटरी बन जाऊं तब मजा आएगा। अभी हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊं तब मजा आएगा। लाइफ में हमेशा ये याद रखना कि द मोमेंट आप किसी टारगेट पे पहुंचते हो ना, आपका माइंड अपने आप उस टारगेट को 10 गुना करके नया टारगेट सोच लेता है। तो अगर तुमने प्रोसेस को जीना नहीं आया तो जिंदगी में तुम कभी जियोगे ही नहीं। द लाइफ इज हैपनिंग विदाउट यू एंड विद यू द मोमेंट राइट नाउ इन दिस ब्लिंक। दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ। The moment right now in your preparation, in your listening, in your interpretation, this is the real life. If you are not enjoying this, you are not enjoying anything. इस चीज को याद रखो, सक्सेस इज जर्नी। यह कोई पड़ाव नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है आपके पास में, ये कोई माइलस्टोन नहीं है आपके पास में। हर काम को इस तरीके से करो कि दिस शुड इंसाइट अ यूफोरिया, दिस शुड इंसाइट अ हैप्पीनेस विद इन यू, द सेम एज सक्सेस डज, राइट? यस, प्रोसेस में ही मजा है भैया। तो लॉस एंड डैमेज फंडिंग ऑफ द क्लाइमेट चेंज। भैया अभी आपके पास में रिसेंटली कंक्लूड क्या है, COP27 कहाँ पे हुआ ये,
इजिप्ट में हुआ है, क्या हमने पढ़ा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 इजिप्ट में चल रहा है, राइट। यहाँ पे समिट में डेलीगेशंस आए हैं फ्रॉम यूनाइटेड नेशन। They agreed to create a loss and damages fund which will compensate the most vulnerable countries for their losses due to climate related disasters. What is loss and damage funding? Loss and damage refers to impact of climate change that cannot be avoided either by mitigation, greenhouse gas cutting or by adaptation modifying the practices buffer against the climate change impact. तो ये कहा जा रहा है लॉस एंड डैमेज का मतलब है कि ऐसा इम्पैक्ट, ऐसा प्रभाव क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा प्रभाव जिस अनहोनी को होने से नहीं रोका जा सकता, जो इनएविटेबल है आपके पास में, अनअवॉइडेबल है आपके पास में, वो होके ही रहेगा। लॉसेस एंड डैमेजेस, चाहे कितना भी आप मिटिगेशन कर लो, चाहे कितना भी क्या कर लो आप, मिटिगेट करना क्या होता है दोस्तों, अवॉइड करना, किसी भी चीज को क्या करना है हमें, अवॉइड करना या फिर अडेप्ट करना। अच्छा, अडेप्टेशन क्या होता है आपके पास में, व्हाट इज अडेप्टेशन, एक्वायर करना, उससे बेटर तरीके से आप लाइफ जीने की कोशिश करो या फिर मॉडिफाई करो अपनी प्रैक्टिसेस, ताकि क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट से आप और बच सको। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लॉस एंड डैमेजेस होने वाले हैं, जो क्लाइमेट चेंज से होके ही रहेगा, उसकी फंडिंग कौन करेगा, उस डैमेज की भरपाई कौन करेगा भविष्य में, एट द एंड ऑफ द सेंचुरी 2050, 2070 और 2100 के करीब हम ये होने से रोक देंगे। इसके लिए हम आज मीथेन कट करें, CO2 कट करें, दैट इज ओके। सो नाइस ऑफ यू कि तुमने अपनी एरर को रिकॉग्नाइज किया और भविष्य में सुधारना चाह रहे हो, अभी सुधारना चाह रहे हो। बट जो अब तक तुमने एरर की पिछले 100, 150, 200 साल में, उसको कैसे सुधारोगे, उसके कारण जो डैमेज हुआ है, जो लॉस एंड डैमेज हुआ है, उसको कैसे सही करोगे, उसको कैसे फंड करोगे, उसको कैसे फिनेंस करोगे। Question to be noted, sir and ma'am. So they also include that not only economic damage property but the loss of livelihood, कई लोगों की नौकरियां गई उसके चक्कर में, destruction of biodiversity, प्रकृति का विनाश हुआ, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता खत्म हुई, and the sites have the cultural importance, जो सांस्कृतिक धरोहर थी हमारी, वो संस्कृति खत्म हो गई कई जगह पे तो उस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के कारण। सो दिस ब्रॉडर्स द स्कोप ऑफ अफेक्टेड नेशन एंड क्लेम्स टू कंपेंसेशन। तो कि सर जो अफेक्टेड नेशन है, जो प्रभावित देश है, उनको कैसे कंपेंसेट करोगे, उनको किस तरीके से आप पैसा देने वाले हो, उसके ऊपर डिस्कशन चल पड़ा है सर अब आपके पास में यूनाइटेड नेशंस की COP के अंदर। हाउ द कंसेप्ट ऑफ द लॉस एंड डैमेज इज इवॉल्व्ड सिंस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, जिसको हम क्या लिखते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ठीक है ना। यहां से आपके पास में क्या है, कब बना था ये, 1990 से, स्पेसिफिकली 1992। लॉस एंड डैमेजेस ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज हैव बीन डिबेटेड। द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ग्रुप जो भी है आपके पास में हैज लॉन्ग एम टू एस्टैब्लिश अकाउंटेबिलिटी एंड कंपेंसेशन फॉर द लॉस एंड डिस्ट्रक्शन। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, LDCs इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। जो सबसे पुअर कंट्रीज है, वो कहती है सबसे ज्यादा तो हम मारे गए ना, भारत के पास में सोलर पैनल बनाने के लिए अगर नहीं है तो इंपोर्ट करने का पैसा, हमारे पास में क्या है, कुछ भी नहीं है, राइट। और ना ही हमारे पास में इतना टैलेंटेड यूथ है, ना ही हमारे पास में इतने टैलेंटेड रिसोर्सेज है, तो फिर क्या करेंगे हम, हमको तो भैया हमारा देश खत्म कर दिया आपने, हमारे कल्चर खत्म कर दिया आपने, हमारी जिंदगी खत्म कर दी, बायोडाइवर्सिटी खत्म कर दी, अब हमको कंपेंसेशन दीजिए, गिव अस द मनी सो दैट वी कैन इवॉल्व। तो ये अभी से नहीं चल रहा है, सिंस द लास्ट 3 डेकेड, 30 सालों से ये बात चल रही है। हाउएवर हिस्टोरिकली ब्लेम फॉर द क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ, रिच कंट्रीज हैव ओवरलुक्ड द कंसर्न। रिच कंट्रीज ने हमेशा इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को ओवरलुक ही किया है। हाँ ठीक है, बात कर रहे हैं, है ना, हाँ ठीक है, बात कर रहे हैं, देखी जाएगी क्या होगा, क्या कर लेंगे। कोई जबरदस्ती पकड़ के अमेरिका से पैसा निकलवा सकता है, नहीं निकलवा सकता। सो वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म था लॉस एंड डैमेजेस के ऊपर, क्या है, वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म है, किसके ऊपर है, लॉस एंड डैमेजेस के लिए। ये फाउंड किया गया था 2013 के अंदर। यहाँ पे था कि विदाउट फंडिंग एक्सटेंसिव प्रेशर्स ऑन डेवलपिंग कंट्री। हाउएवर ड्यूरिंग द 2021 कॉप्स जो ग्लासगो में हुई थी UK के अंदर, a 3-year task force was established to consider the funding arrangement for the loss and damages। वापस 2021 के अंदर हमने लास्ट ईयर जो एक और COP हुआ था आपके पास में 26, ये कहाँ पे होता, ग्लासगो UK के अंदर। उस मीटिंग में हमने कहा कि सर हमें 3 साल के लिए एक टास्क फोर्स बनाते हैं और वो इस फंडिंग अरेंजमेंट के ऊपर फाइनल डिसीजन देने वाला है। सो फार कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, बेल्जियन प्रोविंस ऑफ द वेलोनिया हैव एक्सप्रेस्ड द इंटरेस्ट इन लॉस एंड डैमेज फंडिंग। सिर्फ इन्हीं देशों ने कहा है कि सर हम कुछ पैसा दे सकते हैं, बाकी जो बड़े बड़े देश चाइना, रशिया, USA, इन्होंने तो नाम ही नहीं लिया। बोले ये पैसा छोटा मोटा नहीं होगा, 5, 10, 15, 20 बिलियन के करीब होगा, वो भी एक साल का। 20 बिलियन एक साल का देना बहुत बड़ी बात है। हमारा पाकिस्तान तो 4-4 बिलियन के लिए बेसिकली कटोरा लेके घूमता है पूरा दुनिया में।
कहाँ से लेके आएगा 20 बिलियन? बोले हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं भैया, क्या कर लेंगे हम लोग। चलिए, सो ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस द COP27 यूरोपियन यूनियन प्रेस हार्ड फॉर चाइना, Arab states and large developing countries contribute on the ground on they were the large emitters. There is no agreement on what counts the loss and damage. Loss and damage क्या है, इसकी कोई एक मूर्त परिभाषा अभी तक नहीं है. There is no definition. लॉसेस क्या है, डैमेजेस क्या है. आप कहोगे मेरे दादाजी की जॉब चली गई, कहाँ है दादाजी, बुलाओ, दादाजी चले गए. पिछले 2 सेंचुरीज में आपने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, एमिशंस किया, आपने जो क्लाइमेट चेंज किया, उसके कारण हमारे यहाँ पे जॉब चली गई, हमारे यहाँ ये इंडस्ट्रीज बंद हो गए, हमारे यहाँ फॉरेस्ट खराब हो गए, हमारे यहाँ नदियाँ खराब हो गई, हमारे यहाँ कल्चर खराब हो गया, बायोडाइवर्सिटी खराब हो गई. कोई स्टैटिस्टिक्स प्रूव है आपके पास में? कैन यू प्रूव इट साइंटिफिकली? कैन यू प्रूव इट स्टैटिस्टिकली? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, उनके पास कहने के अलावा और कुछ है ही नहीं. मर्सी अपॉन देम. तो ऑब्वियसली ये सारा क्या है, डिबेटेड मामला चल रहा है, होगा या नहीं होगा, दैट इज फ्यूचर. इट ऑलवेज सिम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन. तो 1999 से ये बात चल रही लॉस एंड डैमेजेस की. 2013 में वापस वॉर्सो मैकेनिज्म पे बात हुई. लास्ट ईयर ग्लासगो COP26 में भी वापस बात हुई. इस साल भी वापस ये इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर है, एडिटोरियल्स में है लॉस एंड डैमेजेस. तो लॉस एंड डैमेजेस आप याद रख सकते हैं, वॉर्सो मैकेनिज्म आप याद रख सकते हैं. कैन यू ऑल रिमेंबर दिस पॉइंट्स? COP को आप याद रख सकते हैं. लेटेस्ट इसको कंक्लूड करते हैं दोस्तों. लास्ट टॉपिक आज की क्लास का और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आज की क्लास का रहने वाला है. रिसेंटली आपके पास में एक बुक है, इन द सर्च ऑफ डिवाइन. क्या है बुक का नाम, क्या है? इन सर्च ऑफ डिवाइन, द लिविंग हिस्ट्री ऑफ द सूफिज्म इन इंडिया हैज बीन पब्लिश्ड. ठीक है ना. इस बुक के बारे में अगर कहा जाए तो सूफिज्म की ये बात करती है. किसकी बात करती है दोस्तों? ये सूफिज्म की बात कर रही है. अच्छा, सूफी सिलसिला है, आपको पता होना चाहिए. गाने सुने हैं, सूफी गाने सुने हैं कभी? अरे भैया सूफी गाने सुने हैं क्या? नहीं सुने? जोधा अकबर मूवी देखिए, जोधा अकबर मूवी के अंदर कुछ सूफी गाने हैं. अच्छा, कुन फाया कुन गाना सुना है? कुन फाया कुन गाना सुना है? गरीब नवाज गाना सुना है? नहीं सुना है. अच्छा, आज की जो ये जनरेशन अभी जो 10th 12th ग्रेजुएशन के अंदर है, उनको बेसिकली जस्टिन बीबर से टाइम नहीं मिलता, वो कहाँ सूफिज्म सुनने वाले. तो आज सुनो जा करके, है ना, आज जा करके सुनो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट. बहुत ही अच्छे होते हैं सूफी गाने. सूफी गाने तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से मिला देंगे एक बार तो. मतलब इतनी ठंडक पहुंचाने वाले गाने होते हैं, बहुत डीप मीनिंग होते हैं. कईयों को तो समझ में भी नहीं आएंगे पर सुनने में अच्छा लगेगा. सूफिज्म बेसिकली एक मिस्टिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम है. ये भी क्या है, एक तरह का इस्लाम का ही रूप है. अ स्कूल ऑफ प्रैक्टिस, इट फोकसेस ऑन द स्पिरिचुअल सर्च ऑफ द गॉड. वो भगवान को किस फॉर्मेट में, आध्यात्मिक तरीके से स्पिरिचुअल फॉर्म में बेसिकली ढूंढने की कोशिश करते हैं. इट सन्स द मैटेरियलिज्म. जो मैटेरियलिज्म है, जो भौतिकवाद है, जो दिखावा है, वो सबको छोड़ देते हैं. मतलब ये सारे क्या होते हैं आपके पास में, अपने आप में जो भी सूफी सिलसिला को फॉलो करते हैं इस्लाम के अंदर, वो सब क्या होते हैं, फकीर, पीर फकीर होते हैं. कौन होते हैं? पीर फकीर होते हैं आपके पास में. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पीर फकीर, एकदम अपने पास में कुछ नहीं, झोला उठाए और चल ली. गेटिंग इट? मैटेरियलिज्म, भौतिकवाद, सब चीज़ों को साइड में, घर बार पैसा मूर्ति सब चीज़ों को साइड में. भगवान को किस तरीके से, अपने अल्लाह को किस तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ये, दे आर ट्राइंग टू फोकसिंग ऑन द सर्च ऑफ द गॉड थ्रू स्पिरिचुअलिज्म. स्पिरिचुअलिज्म क्या होता है? अच्छा, 2 चीज़ें होती है आपके पास में, एक होता है रिलीजन, एक होता है स्पिरिचुअलिज्म. एक होता है धर्म और एक होता है अध्यात्म. दोनों ही अलग होता है आपके पास में. एक आदमी बहुत ही ज़्यादा रिचुअल्स में फॉलो कर देता है. रिचुअल, सुबह 5 बजे उठ के ये करना ही करना है, सुबह 9 बजे ये करना है, शाम को 4 बजे ये करना ही करना है, शाम को 7 बजे ये करना ही करना है. ये रिचुअल्स हो गए, प्रैक्टिसेस हो गई आपकी, ये रिलीजियस चीज़ें हो गई. जबकि आध्यात्म क्या कहता है, उस आध्यात्म के अंदर कहीं ना कहीं आदमी को रियलिटी, नॉलेज, ट्रूथ, कंक्वेस्ट कहीं कहीं अगर वो करने की कोशिश करे, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, रियलिटी क्या है, ट्रूथ क्या है, उसको वो कहीं कहीं क्वेस्ट करे. भगवान कौन है, सुपर नेचुरल है क्या, गॉड क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, व्हाट इज मीन, व्हाट इज नेचर, जो वो उन क्वेश्चंस को पूछने की कोशिश कर रहा है, दैट इज द रेल्म ऑफ स्पिरिचुअलिज्म. वो क्या है, आध्यात्मवाद हो जाता है. और बड़ी बात है, हिंदुइज्म का आध्यात्मवाद अलग है, जैनिज्म का अलग है, बुद्धिज्म का अलग है, इस्लाम का अलग है. तो इस सूफी सिलसिला में इस्लाम को ही फॉलो करते हुए मैटेरियलिज्म, भौतिकवाद को छोड़ करके वो किसके अंदर, देश दुनिया को छोड़ करके वो सीधा सीधा स्पिरिचुअलिज्म में कूद जाते हैं, है ना. बहुत ही प्यारे गाने होते हैं, इनको सुना करो आप लोग. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द इस्लामिक मिस्टिसिज्म. अच्छा, मिस्टिसिज्म क्या होता है, ये कहते हैं कोई एक तरीके का योगिक आदमी, मिस्टिक आदमी, जादूगर है ना. इन्होंने कुछ
ऐसे किया और आदमी, मुर्दा आदमी खड़ा हो गया। अभी यहां खड़े थे और धुम धश एकदम धुआं और आदमी गायब हो गया। एक आदमी एक ही टाइम में चार चार जगह पे दिखने को मिल रहा है। मिस्टिक, इसको क्या कहा जाता है? मिस्टिसिज्म। मिस्ट्री इसके पीछे जुड़ी है, और वो मिस्ट्री क्या है हम नहीं समझ पाते। वो मिस्ट्री क्या है आम आदमी नहीं समझ पाता। मतलब इस्लाम के अंदर ही मिस्टिसिज्म से थोड़ी सी चीजें जुड़ी हुई हैं। इस्लामिक मिस्टिसिज्म से एक फॉर्म है, इट स्ट्रेटेज ऑन द एस्टिसिज्म एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द डिवोशन टुवर्ड द गॉड। सिर्फ एक ही चीज है, भगवान में ध्यान। किसमें ध्यान है? अल्लाह में इनके पूरा ध्यान रहेगा। सूफिज्म सेल्फ डिसिप्लिन in considered an essential condition for the gain knowledge of the God by sense of perception। सबसे बड़ी चीज ये कह रहे हैं सेल्फ डिसिप्लिन होता। सूफिज्म क्या कह रहा है आपके पास में? अपना गुरु स्वयं हो, आत्मदीपो भव। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है तभी आपको गॉड का परसेप्शन होगा। आंख बंद करके बस सेल्फ डिसिप्लिन से उन्हीं के ऊपर फोकस करो। ये गा करके फोकस करते किस तरीके से? बाय सिंगिंग दे आर फोकसिंग ऑन द गॉड, दे आर फोकसिंग। तो परसेप्शन होता है इनको उसका गॉड का। इन द बिगिनिंग ऑफ द 12 AD, अच्छा AD मतलब क्या है? एनो डोमिनी। जब जीसस का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उसके पहले के टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट बीसी लिखा जाता है, 1st सेंचुरी बीसी, 2 सेंचुरी बीसी, 3 सेंचुरी बीसी। अब आज की तारीख में क्या चल रहा है? 2022 है ना। तो ये क्या है आपके पास में? जीसस के जन्म से 2022 साल आज हुए, 2022 साल आज हुए हैं। इसको हम लिखते हैं कॉमन एरा। क्या लिखे हैं? कॉमन एरा, है ना। इसको क्या लिखेंगे? कॉमन एरा, ठीक है ना। या फिर इसको एडी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एडी, एनो डोमिनी। क्या लिखा जाता है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का क्या मतलब? इन द नेम ऑफ गॉड। क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पे आज से 2022 साल हो चुके। कॉमन एरा चल रहा है। इससे पहले क्या था आपके पास में? बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा, दोनों ही सेम ही बात है। कॉमन एरा के पहले या क्राइस्ट के पहले, क्राइस्ट के बाद में, जैसे कि इन कॉमन एरा, इसी को दूसरी लैंग्वेज में एनो डोमिनी बोल दिया। तो यहां पे 12वीं एडी के अंदर, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के लगभग 12 सेंचुरीज बाद में, 12 एडी की यहां पे बात की जा रही है। बिगिनिंग ऑफ द 12 एडी सम रिलीजियस पीपल ऑफ द पर्शिया turned the asceticism and due to the increasing materialism of the caliphate। इस्लाम में जो सबसे बड़ा मसीहा होता है उसको खलीफा कहा जाता है। सबसे बड़े लीडर को क्या कहते हैं लोग? कैलिफेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्की में इसकी सीट हुआ करती थी। कहाँ इसकी सीट हुआ करती थी? टर्की। याद रखेंगे आपके पास में इसको। पर वहाँ मैटेरियलिज्म इतना बढ़ चुका था, मैटेरियलिज्म, भौतिकवाद, भौतिक सुखों के अंदर वो इतना डूबने की कोशिश कर रहे थे कि उसी इस्लामिक टाइम पीरियड में से, स्पेसिफिकली 12 एडी के टाइम, कुछ लोग ऐसे निकले आपके पास में पर्शिया वाले रीजन में, आज का जो ईरान इराक वाला रीजन है ना, इस रीजन से बेसिकली ऐसे लोग निकले जो मैटेरियलिज्म को छोड़ करके एस्टिसिज्म और आपके पास में भौतिकता को छोड़ करके भगवान की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। दे केम टू बी कॉल्ड एज अ सूफी। उन्होंने अपने आप को क्या नाम दिया? सूफी। और वो धीरे धीरे मूव करके भारत में भी आए, वो धीरे धीरे मूव करके इंडिया में भी आए। In India, the Sufi movement began in the 1300 AD and came to the South India in the 15th century. In Sufism, self-discipline was considered the essential conditions to gain knowledge of God. सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है। सूफीज्म में सबसे जरूरी चीज क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन। आपने सेल्फ डिसिप्लिन है तो भगवान से आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सो वाइल ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स एम्फेसिस ऑन द एक्सटर्नल कंडक्ट। ऑर्थोडॉक्स तो क्या कहते हैं आपके पास में? नमाज पढ़ो, अजान दो, ये फॉलो करो, वो फॉलो करो, ये हरम है, ये हरम नहीं है, ये फर्ज है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें करो, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल कंडक्ट पे बात करते हैं, जबकि सूफी लेज स्ट्रेस ऑन द इनर प्योरिटी। ओके, बाहर से तुम कुछ भी हो, अंदर से मजे में। क्या है? अंदर से मजे में गाते रहो, बजाते रहो और भगवान के साथ में रेडियो फ्रिक्वेंसी से मैच मिक्स करते रहो। सो इनकी इटाइमोलॉजी कहा जाए तो टर्म सूफी प्रोबेबली डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड सफ। सफ का मतलब होता है आपके पास में द वन हु वियर्स वूल, द वन हु वियर्स वूल। तो सूफी मतलब ये एक तरह की शॉल पहना करते थे, एक तरह की ऊनी शॉल पहना करते थे, इसके कारण इनको सूफी बोला जाने लगा। क्या बोला जाने लगा? सूफी। दिस इज बिकॉज द वुलन क्लॉथ वर जनरली एसोसिएटेड विद द एस्थेटिक्स। वुलन क्लॉथ, देखो कभी भी आप देखने की कोशिश करो, कोई भी धर्म के अंदर जो महात्मा लोग हैं वो हमेशा उन्हीं आसन के ऊपर बैठते, उन्हीं कपड़े पहनते हैं। कारण क्या? कि वो उनको अपनी उनकी एनर्जी को आइसोलेटेड रखता है दूसरी एनर्जी से, उनकी एनर्जी को दूसरी एनर्जी से आइसोलेटेड रखता है। हमारे घर पे भी कोई महात्मा जी आते हैं तो हम उनके लिए ऊन का आसन बिछाते हैं। किसी भी आदमी को साधना करते हुए देखा होगा तो वो कुछ आसन लगा के बैठता है, ऊन का आसन लगा के बैठता है, क्योंकि ऊन क्या करती है? आपको आइसोलेट करती है,
आपकी एनर्जी को आइसोलेट करती है, मतलब जमीन की एनर्जी आप में नहीं आने देती, आपकी एनर्जी जमीन में नहीं जाने देती, अर्थिंग नहीं होने देता ये, ठीक है ना। तो ये सूफ से सूफी और सूफी से सूफीज्म, समझ में आया। तो यहाँ पे दिस इज एसोसिएटेड विद द पर्सन हु आर फॉलोइंग द एस्थेटिक्स और वूलन क्लॉथ पैटर्न। अनदर पॉसिबल ओरिजिन ऑफ द वर्ड इज साफा विच मीन्स प्योरिटी इन द अरेबिक। साफा का क्या मतलब होता है? प्योरिटी। साफा का क्या मतलब होता है? प्योरिटी। तो यह भी आपके पास में अरेबिक वर्ड है साफा, सूफ, जिससे सूफीज्म वर्ड का एटाइमोलॉजी है। स्टेजेस ऑफ द सूफीज्म जो है आपके पास में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं खानका। क्या कहते हैं? खानका। स्टार्टेड इन द 10th सेंचुरी, कॉल्ड एज द एज ऑफ द गोल्डन मिस्टिसिज्म। गोल्डन मिस्टिसिज्म क्या हो रहा है भाई साहब? बाबा जी यहाँ से एकदम छू मंतर होके गए, कहीं और चले गए। बाबा जी ने बोल दिया आज से ये हो जाएगा, वो होने लग गया। मतलब दे वर काइंड ऑफ मैसेंजर, दे वर काइंड ऑफ नॉलेजेबल, वेरी मिस्टिक पीपल। जैसे आज सदगुरु जग्गी, मिस्टिक कहते हैं उसको, द मिस्टिक्स ऑफ द इंडिया। एक यूट्यूब चैनल है द मिस्टिक्स ऑफ द इंडिया, है ना। तो वो बताते हैं उसके अंदर कि मिस्टिक्स क्या होते हैं। हमारे अंदर भी कई बड़े बड़े मिस्टिक्स हुए हैं, जैसे नाम बताएंगे योगी मत्स्येंद्र नाथ जी, उनके शिष्य गुरु गोरख नाथ जी, जो नाथ संप्रदाय के अंदर सबसे श्रेष्ठतम माने जाते हैं। मिस्टिक्स है सर अपने आप पे, मिस्टिक्स है क्योंकि इनके लेवल का तपस्या, इनके लेवल का नॉलेज नेक्स्ट टू द इम्पॉसिबल हुआ करता है सर, ठीक है ना। और जैसे हिंदुइज्म में ये है, मुस्लिम अपने इस्लाम सोसाइटी में ये है, ठीक है ना। पहले सेंचुरी में स्टार्टेड इन द 10th सेंचुरी, आल्सो कॉल्ड एज द एज ऑफ द गोल्डन। सेकंड स्टेज में 11वीं से 14वीं सेंचुरी, सूफीज्म वाज बीइंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड द ट्रेडिशन ऑफ द सिंबल स्टार्टेड बीइंग अटैच्ड टू इट। तो वहां पे सूफीज्म में क्या होता, ऐसा नहीं होता था बाप है तो बेटा भी सूफी है, चेला होता था इनका। क्या होता था? सिलसिला चलता था, सिलसिला। सूफी सिलसिला है। जैसे सपोज जयपुर में, ग्वालियर के अंदर, लखनऊ के अंदर तो सूफी सिलसिला चला करता था। मैं हूँ, मैंने अगले 2 और सूफी ट्रेन किए, उन्होंने 2 अगले और सूफी ट्रेन किए, एक सिलसिला चलता आया सर आपके पास में। थर्ड स्टेज जिसको तरीफा बोला गया, इट स्टार्टेड इन द 15th सेंचुरी, मतलब लगभग 1499 के आसपास में शुरू हो गया था। एट द एंड ऑफ द स्टेज सूफीज्म बिकेम द पॉपुलर मूवमेंट, है ना। और इस टाइम तक सूफीज्म पॉपुलर हो चुका है। और यही 1400-1500 का टाइम था जब अकबर था, जब अकबर था, है ना। और अकबर अपने कोर्ट में, अपने कोर्ट के अंदर नवरत्न रखता था, उसमें से काफ़ी सिंगर्स भी रखता था। उसमें से कुछ सिंगर्स सूफी सिंगर्स थे। जो मिस्टिक्स को वो सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट करता था, वो कौन थे? सूफी हुआ करते थे। जो अगर जोधा अकबर मूवी तुमने नहीं देखी है तो दोस्तों प्लीज़ देखो, है ना। उसके जोधा अकबर मूवी के कम से कम गाने देखने की कोशिश करो। वो वहाँ पे एक नाइट कैंप लगाते हैं, नाइट कैंप के अंदर बेसिकली वहाँ पे एक सूफी सॉन्ग चलता है ना। I guess at that time I was in my school days only, and that song has so calmness and so soothing effect on my conscious mind that really I appreciate that. भले ही मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आया because it was in the different languages, पर सोचो अगर आपको वो लैंग्वेज समझ में आती और उससे आप मेंटल यूनिटी बिठा पाते, आहा फिर तो कहना ही क्या। सो मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ इन अ वे, मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि खूबसूरती किसी भी फॉर्म में, किसी भी जगह में, किसी भी आदमी में, किसी भी रिलीजन में हो, देश दुनिया में, देखनी है, अप्रिशिएट करनी है, ठीक है ना। खाली खूबसूरती, अच्छाई हमारे में ही नहीं होती है, भगवान ने और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं, है ना। तो हमेशा उन चीज़ों को क्या करना चाहिए, खाली ऐसा कट्टरता पे नहीं चलना है, मैं तो नहीं सुन रहा क्योंकि ये इस्लाम का, मैं तो नहीं सुन रहा क्योंकि ये हिंदुओं का है, नहीं। ऑलवेज वी ऑल आर सोसाइटी, वी ऑल आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड्स, तो वी आर सपोज टू बिलीव इन दैट। चलिए फिर सूफी ऑर्डर, सूफी सिलसिला चलने लगा, एक चिश्ती सिलसिला चला आपके, चिश्ती ऑर्डर सूफीज्म के अंदर ही। इट इज फाउंडेड इन इंडिया बाय द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वही अजमेर में जिनकी दरगाह है। एम्फेसाइज ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ द यूनिटी ऑफ द बीइंग ऑफ द गॉड, है ना, वदत अल वजूद, एंड द मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर वर आल्सो पेसिफिस्ट। द रिजेक्टेड ऑल मटेरियल गुड्स एज डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ द गॉड। हर एक चीज जो तुम पहन सकते हो, देख सकते हो, हाथ लगा सकते हो, अगर उस चीज को तुमने पहना, देखा, हाथ लगाया तो क्या है, तुम भगवान से नहीं प्राप्त कर सकते, भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। कल की तारीख में तुमको तो कोई 10 किलो सोना दे दे, दूसरे दिन पूछ ले मेरे को दे दो, दे दो, कोई तुम्हें देख के क्या, तुम किसी को दे दो। किसी चीज से लगाव रखो ही मत, जुड़ाव रखो ही मत, तभी भगवान मिलेगा। यूपीएससी और क्लैट और आईएएस और जुडिशरी भी कुछ ऐसा ही है। कल की तारीख में तुमको कुछ बहुत ही अच्छा दे के गया गिफ्ट, आज खराब हो गया, तुमने वो किसी को रिटर्न गिफ्ट में दे दिया। किसी चीज़ से लगाव मत रखो।
जिस चीज़ से तुम लगाव रखोगे तुम उससे ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। जिस चीज़ के लिए तुम लड़ोगे, जिस चीज़ के लिए तुम हट करोगे, झगड़ोगे, पैसे के लिए, टाइम के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, फादर के लिए, मदर के लिए, XYZ के लिए, उससे ऊपर ही नहीं उठ पाओगे तुम। ये चीज़ समझने की कोशिश करो। मतलब आपको फाइट करनी है तो देश के लिए करो, ह्यूमैनिटी के लिए करो, पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए करो, एजुकेशन को फॉरवर्ड करने के लिए करो, सोशल रेनेसा के लिए करो, सामाजिक जागरण के लिए करो, तब तो आपकी फाइट वर्थ है। अदरवाइज आपकी फाइट क्या है? जीरो। सो दे एब्सटेन फ्रॉम द कनेक्शंस विद द सेक्युलर स्टेट। अच्छा, कभी ऐसा नहीं कहते थे कि सर सेक्युलरिज्म होना चाहिए, इस्लाम के थे बंदे तो इस्लाम को तो हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। तो कभी इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। सेक्युलरिज्म की बात सिर्फ हिंदुइज्म करता था, सेक्युलरिज्म की बात हिंदुइज्म करता था। जियो और जीने दो, है ना। चाहे आपके पास में कितना भी उदारवाद थे, कट्टरवादी नहीं, उदारवादी थे, लिबरल थे, बट दे वर नॉट सेक्युलर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए वेदर द सूफिज्म एडवोकेटेड द सेक्युलरिज्म, नो सर, राइट। दे एब्सटेन फ्रॉम द कनेक्शन। एब्सटेन मतलब इन्होंने अगेंस्ट में भी नहीं बोला तो फेवर में भी नहीं बोला। एब्सटेन मतलब समझते हो, यूनाइटेड नेशन में जब भी वोटिंग होती है, कई बार इंडिया को वोट करना होता है तो इंडिया पार्टिसिपेट करता है वोटिंग में। अब इंडिया को वोट फेवर में करना है तो यस करता है, नहीं करना है तो अगेंस्ट में वोट डालता है। परंतु इंडिया कई बार पता चले एक तरफ अमेरिका एक तरफ यूएसएसआर है, साला मैं क्यों चटनी बोलूं बीच में, तो वो क्या कहता है, एक मिनट आया मैं, पता चले एम्बेसडर साहब 2 दिन आए ही नहीं वापस। अब वोटिंग हो गई, रिजल्ट निकल गया, हाँ अब बोलो क्या हुआ, अच्छा अरे वो मेरा थोड़ा पेट वेट खराब हो गया था, वो वाइफ का कॉल आ गया था, समझ रहे हो। क्योंकि दोनों दोस्त आपस में लड़ रहे, मैं बीच में क्यों एडवोकेट बनूं, मैं क्यों वकील बनूं। मोदी जी ने तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सीधा सीधा बोला है ना ये बात। मोदी जी ने तो सीधा सीधा बोला है कि जब अमेरिका और यूएसएसआर 2 बड़ी ताकतें हैं, मेरे को नहीं लगता कि उन दोनों को मेरे जैसा वकील की जरूरत है समझाने के लिए या एक दूसरे का मत रखने के लिए। कौन सही कौन गलत ये मैं नहीं बता सकता। एब्सटेन करते, वो क्या करते हैं, आप न्यूज़पेपर्स जब आगे पढ़ेंगे तो कई बार पढ़ेंगे द इंडिया एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, दिस कंट्री एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। एब्सटेन का क्या मतलब है, ना ही तो अमेरिका के फेवर में वोट दिया, ना ही रशिया के फेवर में वोट दिया, ना ही अमेरिका के अगेंस्ट गया, ना ही रशिया के अगेंस्ट गया। सेक्युलरिज्म को एब्सटेन किया, मतलब ना ही सेक्युलरिज्म को फॉलो किया और ना ही सेक्युलरिज्म को कैंसिल किया। ठीक है ना, बोले हम यूनिक है, अपने आप में क्या है, यूनिक, सेल्फ डिसिप्लिन लोग है, मैटेरियलिज्म चाहिए नहीं, भगवान चाहिए हमको। तो चलिए, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दैट्स इट। बाकी भी इसके अंदर मैंने काफ़ी दे रखे हैं, आपको फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही करने वाले दोस्तों। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा, आपको आज क्लास में आपने क्या क्या सीखा है वो कमेंट जरूर करके बताना है। चाहे आपने आइडियोलॉजिकल वे में कुछ सीखा है, चाहे आपने नॉलेजेबल वे में कुछ सीखा है, क्लैट के एंगल से, यूपीएससी के एंगल से, किसी भी एंगल से, जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइएगा। राइट, विद दिस बीइंग सेड आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद एंड सर्वदा शक्तिशाली। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस अमॉन्ग द फ्रेंड्स। थैंक यू।